Hey folks, Saksham this side from Ace IPM. Happy Valentine's Day to all of you. मुझे नहीं पता आपको आपकी क्रश मिलेगी या नहीं, बट वन थिंग दैट आई रियली होप फॉर इज कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। और ड्रीम कॉलेज की बात कर ही रहे हैं तो आई वांट टू गिव यू अ न्यूज़ विच इज़ आई एम इंदौर हैज़ रिलीज द एडमिशन पॉलिसी फॉर IPM फॉर दिस ईयर एंड साथ ही में फॉर्म्स आर ऑल्सो ओपन। In this video, we are going to look at the admission policy. There is one major change with regards to the eligibility, and then we'll come to the form filling part. Please watch this video very patiently because one mistake can possibly cost you your admission, or if not admission, you might have to it might warrant you to fill the form again. तो आप अपने 4,000 रुपये फिर से क्यों वेस्ट करोगे? तो पहली बार में ही अच्छे से भरो, टाइम लेके भरो बट अच्छे से भरो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. इफ़ यू कम ऑन आई एम इंदौर्स वेबसाइट, आप प्रोग्राम सेक्शन में जाएंगे, IPM में जाएंगे, आपको एडमिशन पॉलिसी मिल जाएगी. मैं आपके लिए अभी यहाँ पर खोल के रख देता हूँ. दिस इज द एडमिशन पॉलिसी. सम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज लास्ट ईयर. दैट इज यू नीड टू बी बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2005. So maximum of 20 years, 0 days of age on August 1, 2025 is what they ask for. In the case of SC, ST, PWD category, it has to be born on or after August 1, 2000. So there's a 5-year relaxation, but it effectively means nothing because this year they have entered, like changed their 12th passing criteria. पहले होता था कि आपको सिर्फ 12th पास करना है. This year it says you have to clear your 12th in the year 2023 or 2024, or you should be appearing for it in 2025. So more than double drop is not allowed in the case of IIM Indore starting this year. And in that case, even if you are 23, 24, you might be eligible basis of the age, but I don't think you would have given the your 12th examination in the last 2 years only. So effectively, this additional relaxation means nothing now. Then in the case of 10th and 12th, they are only asking you that you need to be passed in your class 10th and 12th. They are not asking you for a minimum percentage like 60% in other colleges. So that is not there in the case of IIM Indore. That has not been the case last year as well. उसके बाद आप जब कैलकुलेट करते हैं अपने 10th और 12th के परसेंटेज, दैट हैज़ टू बी द बेसिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट अपेयर इन योर मार्कशीट. So it does not matter if you have 5 subjects or 6 or 10 or 20 or 100, you will have to take an average of all the subjects. It does not matter if your board says you need to take the average of best 5, best 4, best 3, best 2. You have to take the average of all because that is what IIM Indore is asking you to do. As a matter of fact, apart from IIM Rohtak, which asks you for best of 5, every other college will ask you for an overall, overall percentage or average of all the subjects. If in case you have been given marks in terms of CGPA, then you need to appropriately convert it into percentage basis of the, formula, conversion formula that is given to you by your board. So that is there. इसके बाद the form filling date has started now. So it is Feb 14, 2025 to Thursday, March 2027. So that is there. The form fee is 4,130. It is very expensive, I know, but there is no way out as of now. You have to fill multiple forms. आपके form filling में 20,000 से ज़्यादा खर्च होने वाले हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर सिमिलर रहेगा लास्ट ईयर की तरह. आप एग्जाम दोगे विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th of May, एंड एग्जाम के बेसिस पे आपका स्कोर आएगा. देर विल बी अ सेक्शनल कट ऑफ दैट यू नीड टू क्लियर इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस. बेसिस ऑफ दैट यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. आप इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं. उसी के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे रखी है. आपका जो मार्किंग रहेगा वो वही +4 -1 रहेगा. QA/SA इज +4 -0, बट QA MCQ VRC are +4 -1 including para jumbles. And जो आपका QA/SA वाला सेक्शन है, you need to type in the answer over there rather than having MCQ options. There are 3 sections and 40 minutes each. As usual, they do not tell you how many questions will be there or what will be the order of sections. But for the last few years, it has been the same. That is QA/SA 15 questions 40 minutes, QA MCQ 30 questions 40 minutes, and उसके बाद आता है आपका VRC which is 45 questions 40 minutes. That is the pattern that is being followed along with sectional cutoff. So that is going to be there. उसके बाद एज इट हैज़ मैंशनड कि आप आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर है उसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क होएगा इन ईच सेक्शन, जो कि एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी. उसके बेस पे आपको कॉल आएंगे और कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा. और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है तो आपके स्कोर को एज इज नहीं लिया जाता. लाइक इफ यू हैव स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 360, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज 200. दैट इज कन्वर्टेड इनटू एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर विच इज द ATS. उसका कैलकुलेशन ये है. We have put out a video on ATS calculation on our channel, last year or last year. So you can search for it and have an idea what the heck ATS is. But nothing that should concern you as of now. All you need to know is कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेक्शन बहुत अच्छा कर लो, बाकी दो में barely कट ऑफ क्लियर करोगे तो यू आर एज गुड एज समबडी हु स्कोरिंग द सेम मार्क्स, बट इट इज़ बैलेंस्ड आउट अक्रॉस ऑल द 3 सेक्शंस. यहाँ पर सेक्शन का हर एक सेक्शन का एक सर्टेन वेटेज होता है. सो दैट इज़ देयर.
उसके बाद आपका these details you can read through it, but nothing important that I should highlight. And as usual, you have 65% weightage to your entrance, 35% weightage to your interview. There is no written ability test in any of the IPMs as of now, not in Rohtak, not in Indore, not in Ranchi, not in Bodh Gaya, Jammu, Amritsar. So that is there, and that is the case over here too. The interview in this case, in the case of IIM Indore, is going to be held offline. In the case of Rohtak, it is considered, it is going to be held online this year. सीट्स जो हैं वो आपकी सेम है, दैट इज 150. स्टैंडर्ड रिजर्वेशन नॉर्म्स अप्लाई एज इज द केस विद ऑल द IPMs. सो ये सारी डिटेल्स हैं. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. एक ही चेंज है, दैट इज यू नीड टू बी पास फ्रॉम योर क्लास 12 इन 23, 24 और 25. उसके अलावा कोई चेंज नहीं है. उसके अलावा हम आते हैं फॉर्म भरने पे. तो अगेन आप वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, आपको मैं लिंक नीचे भी दे दूंगा, बट यहाँ पर आप अकेडमिक प्रोग्राम्स में जाएंगे एंड आप IPM वाले सेक्शन में आते हैं. उसके बाद आप यहाँ एडमिशन्स वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. आप जाएंगे उस पर तो आपका ये फॉर्म खुलेगा. यहाँ पर इस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है. प्लीज़ मेक श्योर सारी डिटेल सही से फिल कर रहे हो. आपका जो नाम है, डिटेल्स हैं, दे शुड बी एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट. आपका नाम सही होना चाहिए, आपकी मतलब डिटेल्स तो आपकी सारी सही होनी चाहिए, बट नाम भी सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, बिकॉज उससे आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होती है. आपको कैटेगरी सही यहाँ लिखनी है, बिकॉज बाद में चेंज नहीं होएगी. और आपको मोबाइल नंबर, ईमेल वो वाला देना है दैट यू चेक ऑफ्टन, बिकॉज दे माइट सेंड यू कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ योर शॉर्ट लिस्ट, सिलेक्शन हो गया, ऑल दोज थिंग्स ऑन दोज पर्टिकुलर mode of communication. So यहाँ you enter your full name as per your class 10th mark sheet, your gender, your category. If you're mentioning any category, you need to have an appropriate certificate for that. If you are a person with disability, your date of birth, the lowest that you can go for is 1st August 2005, or in the case of SC, ST, PWD, it can be 1st August 2000. Your email address, you confirm it again, you enter your nationality, you enter your country of residence. This is because if in case you are an international applicant, then you can give SAT if in case you don't hold an Indian passport. So you can read through the admission policy for international holders in the website. You enter your mobile number, again enter an email and a mobile number which you actively check, ताकि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी information आती है IIM इंदौर की तरफ से, you're able to get it. आपने कैप्चा डाला, you fill the declaration, you click on submit, it asks you to confirm everything again, you then re-verify. After you re-verify, you will receive an email and you will receive a message from IIM Indore which will have your AT application ID and your password. आप उसकी जगह यहाँ तो डायरेक्टली आपको कंटिन्यू करने देगा, अदरवाइज आप लॉगिन कर सकते हो इस पेज पे आके. सो दीज आर द डिटेल्स यू नीड टू एंटर. आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट डाल दिया. अब अगेन यू एंटर योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने पहले से डाल रखी थी. आपने यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस. सो दीज आर द डिटेल्स दैट यू फिल. यू कैन जस्ट फिल इट बेसिस ऑफ योर आधार कार्ड. ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से था, बट नाउ दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर अ मोबाइल नंबर विच इज ऑल्टरनेट एंड एन ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस विच इज गोइंग टू बी योर ऑल्टरनेट, राइट. तो वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं. ये सारी चीज़ें डालने के बाद इट विल आस्क यू टू अपलोड सर्टेन थिंग्स. अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला तो आता है फोटोग्राफ. फोटोग्राफ के लिए इन्होंने यहाँ पर एक PDF दे रखा है, कैसी होनी चाहिए. बेसिक ये है कि इट हैज़ टू बी इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड, उसमें आपकी शक्ल ढंग से दिखनी चाहिए, एंड साथ में चश्मे में ग्लेयर ना आए तो बेटर है, और दैट फोटो शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड. आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं. वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसके हिसाब से फोटो डालें. बाद में बच्चे कहते हैं सर मैंने ब्लू बैकग्राउंड में डाल दिया, इस बैकग्राउंड में डाल दिया, तो उस झंझट में ना पड़े, ठीक से भरें. अपना सिग्नेचर डालना है, अगेन एक प्लेन पेपर पे साइन करके उसे स्कैन करके आप यहाँ पर डाल सकते हो. कुछ KB लिमिट होगा, JPEG फाइल साइज होगा, वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद आपको वैलिड फोटो ID प्रूफ डालना है. इस साल इन्होंने बताया नहीं है कि एग्जैक्टली है ये फोटो ID प्रूफ किसे कंसिडर करते हैं. यू कैन टेक एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो. मोस्ट प्रेफरेबल वन इज आधार कार्ड. और साथ ही में आपको मेक श्योर करना है जो भी आप फोटो डाल रहे हैं उसकी फिजिकल कॉपीज आपके पास है, नहीं तो निकलवा लीजिए, बिकॉज दे विल बी यूज्ड व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एज वेल एज द इंटरव्यू, एंड योर आधार एज वेल, और वट एवर डॉक्यूमेंट यू फिलिंग हेयर, बिकॉज द सेम यू नीड टू कैरी ऑन द डे ऑफ योर एंट्रेंस एज वेल. सो दैट इज देयर. ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आपको यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं व्यू फोटो करके. यहाँ पर आप देखोगे मेरी एक सुंदर सी फोटो आ रही है. सो समथिंग लाइक दिस इज व्हाट यू नीड टू फिल. एंड उसके बाद आपका अगर आप कोई भी कैटेगरी से अप्लाई करें उसका सर्टिफिकेट डालना है. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज
आई थिंक SC ST के केस में तो रिन्यू नहीं होता है सर्टिफिकेट, बट इन द केस ऑफ EWS एंड NCOBC बिकॉज देयर इज एन इनकम लिमिटेशन एज वेल, तो दैट हैज टू बी रिन्यूड एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो अभी आप फॉर्म भरेंगे 31 मार्च तक, तो आप एक फॉर्म के साथ अपना EWS या OBC सर्टिफिकेट डालेंगे, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब तक आपके पास रिन्यूड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज दे विल कैंसिल योर कैंडिडेचर। इफ इन केस यू फील लाइक अभी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है बट यू आर एलिजिबल फॉर इट, then you can mail IIM Indore, ask them if you can fill undertaking right now that you will present a certificate at the time of interview. Nahi hua to your admission will be cancelled. If they allow for it, then you can go ahead with that route as well and directly make one in the next financial year. So after all these things, you click on save and next. उसके बाद आपसे पूछता है academic details. Now as I mentioned earlier, over here you need to make sure that आपकी academic details best of all subjects हैं. It is not best of 3, 4, 5. It is the aggregate of all subjects for both 10th as well as 12th, if in case you have already given 12th in 24 or 23. So ये सारी डिटेल्स आपने डालनी है। आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपका जो मार्क्स बन रहा है एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, आपने CGPA से कन्वर्ट करा है तो आपके पास अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव बोर्ड। आपने बोर्ड का नाम डाला, आपने स्कूल का नाम डाला, यहाँ पर आपने ईयर ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपने अपनी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दी, स्कैन करके डाल सकते हैं। यहाँ आपको सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, विच वॉज द केस इन द केस ऑफ IIM रोहतक। उसके बाद सेम चीज़ आपको 12th के लिए करना है, ओनली डिफरेंस इज 12th में यहाँ पर 23, 4, 5 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज अ चेंज ओवर हियर, और वही आपको सारी डिटेल्स डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे सिटी प्रेफरेंस में, तो यहाँ पर आप अपनी सिटी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, वट एवर इज नियर टू योर प्लेस। उससे याद आया आपका प्रेफर सिटी 1 नोएडा है, और हम भी नोएडा के अंदर लोकेटेड हैं। नोएडा में हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन। इट इज लाइक अ 2-minute वॉक। You can come over here, experience the way we teach students and how we are different, and साथ में आप हमारे ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हो जो कि लाइव हैं, एक्सप्रेस फॉर फ्रेशर्स, पिनिकल फॉर ड्रॉपर्स, और साथ ही में उनके ऑफलाइन वर्जन भी यहाँ पर लिस्टेड हैं। सो हो गई प्रमोशन, आपकी सिटी प्रेफरेंस चल गई फॉर एंट्रेंस, और उसके बाद इंटरव्यू प्रेफरेंस भी अभी से मांग रहे हैं कि आपका ऑफलाइन इंटरव्यू अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो आई होप यू डू, तो आपकी इंटरव्यू प्रेफरेंस क्या रहेगी, सिटी प्रेफरेंस आपने वो डाल दी, आपने क्लिक करा सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप आए पेमेंट डिटेल्स में, आपने सारी डिटेल्स यहाँ जो भी लिखी हुई हैं आपने वो सारी डिटेल्स पढ़ी, आपने एक बार फिर से प्रीव्यू वाला बटन दबाया, आपने सारी डिटेल्स आराम से तबीयत से बैठ के पढ़ी। यू आस्क योर पेरेंट्स टू ऑल्सो रिव्यू इट, यू आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस भी इंसान को आपके बारे में बहुत कुछ पता है, आस्क देम टू वेरीफाई एवरी डिटेल, एवरी सिंगल पीस ऑफ डिटेल, ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वेरीफाई ऑल द थिंग्स। यहाँ नीचे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख लीजिए। जब हाँ कंफर्म हो जाए कि सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सबमिट क्लिक करना है, कैप्चा डालना है, आई एग्री करना है, और इन्हें बहुत सारा पैसा दे देना है, विच इज़ 4130 रुपीज़, एंड उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका एग्जाम होना है May 12th पे, जिसके लिए आई होप यू एस दी एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो यू कैन ज्वाइन ACE IPM एज वेल, एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप इन डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन अनदर वन, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड बाय बाय, थैंक यू।